Good morning, class 12 children. So, today I am here with my next lecture, lecture number 2 for the chapter 8 Human Health and Disease. And the topic which I'll be delivering today is immunity, our very own current topic. See, children, now what is immunity? Uh, suppose if any foreign particle, a microorganism, or means a foreign body, it tries to enter or attack your body. Now what happens? Your body will sense that attack or the entry, and your body will release an army of your soldiers. And who are the soldiers? The WBCs or the leukocytes. They are having many further more types of their cells. So they will release millions of cells who will be acting as the soldiers to fight that particular foreign body, foreign microbe, let it be a bacteria, fungus or whatsoever category. So ये जो चीज़ है, ये जो process चल रहा है fighting, this is immunity. Means if anyone is going to attack you and you are able to defeat that, your body is able to defeat that particular antigen. Antigen means the foreign body. Then yes, you are immune. You have a strong immune system. So this is immune system and the process immunity. See children, immunity is of two types, innate and acquired. Innate is the immunity which you are getting from your birth. Fine. And acquired is जो birth के बाद आप धीरे धीरे अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं. Like you had an infection from a microbe and now your body has developed enough antibodies against that infection and now you are immune to that. So that is acquired during the lifespan. So let us study a little bit more deeper about them. Innate immunity. Very simple. This immunity is present since birth and it is also known as genetic natural immunity, and it is non-specific immunity. Now what does this mean? See, otherwise in our body, the soldiers or the antibodies, they are only released when the soldiers have been trained. First of all, just remember that these soldiers, WBCs, are trained for some specific antigens. So when these antigens come, specific soldiers are sent. But in case of innate immunity, they do not see कि ये वाला दुश्मन आया है या ये वाला दुश्मन आया है. इनके लिए जैसा भी कोई भी है, दे ऑल आर देयर एनिमीज. सो कोई भी एंट्री करता है, दे सीधे दे स्ट्रेट अवे अटैक दैट पर्टिकुलर वन. Fine. So that's why they are non-specific. Means they are not specific to their enemy. ये specific नहीं है कि मुझे इसी को मारना है. They can kill anyone who enters inside the boundary of the body. Next is innate immunity is shown of 4 types. First, physical barriers. Very simple. आपकी बॉडी में ऐसे तो नहीं कुछ भी घुस सकता है ना. Nothing can enter like this only because your body is covered by a barrier called skin. Skin is a physical barrier. Skin is covered with hair, nose is covered with hair internally. So these all are acting as the physical barriers to prevent the entry of microorganisms or dust particles also you can say. Mucous membranes which are present in respiratory, gastrointestinal and urogenital tract. तो ये क्या है? ये सब क्या है? They are only there to trap what? The foreign particles, the antigens. Second type of innate immunity, physiological barrier. ये सारी immunities are present from our birth. ठीक है? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जिसमें कि कुछ बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं उनसे रिलेटेड बैरियर, उनसे रिलेटेड फाइटिंग दिखाई जा रही है. हाउ? लाइक इन आवर स्टमक एसिड HCl इज बीइंग रिलीज्ड. तो उससे क्या होता है? इट किल्स द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. कई बैक्टीरियाज को ये ख़त्म करते हैं. सलाइवा इन द माउथ, it is having the enzyme lysozyme which is antibacterial in action. Again I have written there. And from tears also, again antibacterial agent is there which is killing up the bacteria, and oil and sweat is also acting as a physiological barrier. Next, the third category under innate immunity is cellular barrier. They are of 2 types. One, phagocytic, and second, natural killer cells. Phagocytic होते हैं like
इफ़ यू रिमेंबर अमीबा, उसका जो स्यूडोपोड है वो क्या करता है, सीधे एनगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल को। इसी तरह से ये जो फैगोसिटिक बैरियर्स हैं, ये सीधे ये जो सेल्स हैं, दे जस्ट एनगल्फ द होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पूरे के पूरे को खा जाते हैं, ठीक है। दे इंक्लूड व्हाट, ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज, जिनके कुछ टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स विच आर ऑल्सो नोन एज PMNL, पॉली मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, फुल फॉर्म इज इन योर NCERT ऑल्सो, एंड मोनोसाइट्स, लार्ज साइज्ड सेल्स। ये जो दो हैं ये एक्ट करते हैं एज फैगोसिटिक बैरियर्स, जो खा जाते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल है। मैक्रोफेजेस which are formed from these monocytes, again they are also acting as phagocytic barriers, क्योंकि ये भी खा जाते हैं। Then are there the natural killer cells which are released in the bone marrow, जो आपकी bones होती हैं, thigh bone and all, long bones जो हैं, इनके अंदर जो fluid है that is bone marrow, and there these natural killer cells are formed। और इनका क्या काम है कि लाइक कोई ट्यूमर है या समथिंग, कुछ ऐसे सेल्स में ट्यूमर आ गया है, कुछ सेल्स में ट्यूमर आ गया है किसी पर्सन के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज नेचुरल किलर सेल्स दे विल ट्राई टू किल दैट पर्टिकुलर ट्यूमर along with the cell also. Next is cytokine barriers. See, these are the barriers present between the cells, ठीक है, ये सेल्स के बीच में घूमते रहते हैं। अब कैसे, सपोज देयर इज अ सेल हु हैज़ बीन इन्फेक्टेड बाय अ वायरस, तो ये जो सेल है जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर इन द डायग्राम ऑल्सो, दिस इज अ फर्स्ट सेल विच हैज़ बीन इन्फेक्टेड बाय येलो कलर्ड वायरस। अब ये जो सेल है ये कुछ केमिकल सिक्रीट करना शुरू कर देता है अपनी सराउंडिंग में, ठीक है, ताकि इसके आसपास वाले जो सेल्स हैं दे गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम दोज केमिकल्स विच आर रिलीज्ड बाय दिस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। वो जो केमिकल्स उसने रिलीज़ किए दे आर इंटरफेरॉन्स, ये इन सेल्स को सिग्नल है, जो अच्छे सेफ हेल्दी सेल्स हैं, कि आप अपने को बचा सकते हैं तो बचाइए, डू समथिंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सच एंड सच वायरस। सो दीज केमिकल्स इंटरफेरॉन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। So this was the innate immunity, 4 types, physical barrier, skin and all, physiological जिसमें like acid in the stomach, cellular जिसमें phagocytic आपकी WBCs की बात की गई है, and cytokine जिसमें कि कुछ special cells हैं which release some chemicals between the cells. Next is your acquired immunity. Acquired is also known as adaptive, क्योंकि ये हमने अडेप्ट किया है, एनवायरनमेंट के साथ हम अडेप्ट करते हैं और हम अपना इम्यून सिस्टम को भी उसी के साथ चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। एंड इट इज़ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, मीन्स फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हैं, जो सोल्जर्स हैं दे आर नोन एज एंटीबॉडीज़। अब वो इतने सारे हैं, दे ऑल आर मैक्सिमम डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर्स। वाई? बिकॉज उनको तैयार ऐसे किया गया है कि आपकी बॉडी में अगर इस तरह का एंटीजन फॉरेन बॉडी आता है तो ये पहला सेट 1 जो तैयार किया एंटीबॉडी का, इट विल अटैक दिस पर्टिकुलर वायरस, लेट इट बी पोलियो वायरस। सेट 2 जो एंटीबॉडीज़ का तैयार किया है, उनको किया गया है बैक्टीरिया, चिकन पॉक्स के बैक्टीरिया को, कि अगर चिकन पॉक्स का बैक्टीरिया इट अटैक्स द बॉडी, सो दिस आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज इट विल अटैक। अब ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, इट इज़ ऑलरेडी prepared, so this is your specific immunity and they are going to hit a specific organism। ये नहीं कि कोई भी आया और कोई भी एंटीबॉडी चली लड़ने के लिए, no। And this type of antibody immunity, it takes lot of days to be formed and activated। अब जब ये इम्यूनिटी होती है दिस एक्वायर्ड वन, तो इसमें 2 रिस्पॉन्सेज आते हैं, 2 टाइप्स। लाइक फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स, जिसको फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स हुआ, लाइक द बैक्टीरिया इट एंटर्ड द बॉडी वॉल ईदर थ्रू द माउथ, नोज और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। वो जो बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ गया तो अब उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तो रेडी होना शुरू हो गई, बट दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, इसको टाइम लगता है। जितनी देर में हमारी बॉडी में वो सोल्जर्स, वो फाइटर्स बने, उतनी देर में जो बैक्टीरिया ऑफ चिकन पॉक्स था उसने अपनी ही मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना ली एंड इट अटैक्ड आवर ओन सोल्जर्स। हम हार गए और उस पर्टिकुलर चाइल्ड को चिकन पॉक्स हो जाता है। बट अब नाउ उसकी बॉडी में ये जो एंटीबॉडीज़ हैं दे हैव क्रिएटेड सम मेमोरी सेल्स। ये जो हारी हुई एंटीबॉडीज़ हैं इन्होंने मेमोरी सेल्स क्रिएट किए कि उनको याद रहे कि कैसा स्ट्रक्चर वाला
चिकन पॉक्स का बैक्टीरिया आया था. नाउ व्हेन द इन्फेक्शन इज ओवर, आफ्टर 15 days ऑलमोस्ट द चाइल्ड इज क्योर्ड. अब वो जो एंटीबॉडीज हैं दे विल फोकस on the formation of an army, a huge army of antibodies against the bacteria of chickenpox. So this is your first one was primary response, जिसमें कि हम हार गए. और second response, अब अगर second time chickenpox का virus comes again, तो अब तो our body is having a huge number of antibodies against that bacteria. So वो सीधे ही उसको enter भी नहीं होने देगी, वहीं beginning में ही उसे ख़त्म कर देगी and we'll not be even come to know. तो इस रिस्पॉन्स को भी से एन एमनेस्टिक और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम. नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इट इज़ वर्किंग इन 2 modules. वन इज़ योर ह्यूमोरल एंड सेकेंड इज सेल मीडिएटेड. सेल मीडिएटेड मीन्स जो सेल्स के अंदर काम करता है इम्यून सिस्टम, सेल के अंदर इम्यूनिटी. एंड ह्यूमोरल, इट इज़ बिटवीन द सेल्स, बॉडी फ्लूइड्स में, लाइक ब्लड, लिम्फ, इस तरह से. आपका जो ये मिल्क है, मदर्स मिल्क, इन सब में ह्यूमोरल एंटीबॉडी होती है. एंड वो इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस ह्यूमोरल, इट इज़ बी लिम्फोसाइट्स. एंड सेल मीडिएटेड जो कि सेल्स के अंदर होता है, वो इज पार्टिसिपेटिंग, इट इज़ टी लिम्फोसाइट्स. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज. Looking at this picture, if you see this light blue and dark blue colored 2 chains, the longest chains, these are the heavy chains. ये दोनों हैवी हैं बिकॉज इनमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं. दिस द ग्रीन कलर्ड चेन्स विच आर द आर्म्स ऑफ द एंटीबॉडी, these green are the light chains. Why? Because they have very low number of amino acids. And these heavy and light chains, they are attached by what? Sulfide bond, disulfide. 2 सल्फर आपस में जुड़कर एक बॉन्ड बनाते हैं among these two. And बिल्कुल बिगनिंग में, you can see in the picture there is a circular, there is a area marked with the circle. This is the antigen binding site. अब एंटीबॉडी जो मैंने कहा ना सोल्जर आर्मी है, वो ये है आर्मी, ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है जनरलाइज्ड. इसके बिगिनिंग में सी दीज आर द आर्म्स, ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है इसके अपर 2 आर द आर्म्स एंड नीचे वाला एरिया इज द स्टेम. तो ये जो आर्म्स हैं, बोथ द आर्म्स दे आर हैविंग एंटीजन बाइंडिंग साइट, मीन्स इनका एक स्पेशल शेप है जो कि सपोज व्हेन दे आर अटैकिंग ऑन एन एंटीजन, किसी फॉरेन बॉडी पर अटैक कर रहे हैं तो ये उसी पर अटैक कर सकते हैं जिसका शेप इनके एंटीजन बाइंडिंग साइट के साथ मिलता है. अगर मिलता है तो ये उसके साथ फिक्स हो जाएंगे एंड दे विल किल इट. So this is your antibody. They are also known as immunoglobulins. They have specific amino acids and they form almost 20% of blood plasma proteins. Next is, इन्हीं के कुछ types हैं, although there are 5, but I am discussing only 4 according to NCERT. IgA, immunoglobulin A antibody. Now what is this? It is present in all body secretions. कुछ भी है, like mother's milk, colostrum. Colostrum is the first yellow milk which comes for the initial days when a lady was pregnant and right now she has delivered the baby. ठीक है, and they are acting as the first line of defense. Means जैसे कोई organism आया सबसे पहले इनको भेजा जाता है. Like in army infantry जाती है ना, infantry goes further to fight, वैसे ही यहाँ पर IgA. and ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री पर ही ख़त्म कर देते हैं. इवन हमें पता भी नहीं चलता. राइट नाउ ऑल्सो मेनी ऑर्गेनिजम्स, मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंटीजन्स आर बीइंग किल्ड इन आवर बॉडी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन टू अस. हमें पता भी नहीं है, वी आर नॉट सेंसिंग इट. नेक्स्ट इज IgE. इट इज़ प्रेजेंट इन योर म्यूकस मेम्ब्रेन्स, स्किन, लंग्स. ठीक है, एंड ये है मेनली जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, दिस IgE व्हाट इट डज कि जब भी कोई फॉरेन जर्म, फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन किसी की बॉडी में आया, ब्लड में आया, तो इस IgE ने उसको रिकग्नाइज अगर कर लिया तो व्हाट इट विल डू, ब्लड में कुछ और भी सेल्स आर मूविंग विच आर दीज ब्लैक वंस, बेसोफिल एंड मस्ट सेल्स. ये इनको एक्टिवेट करती है IgE. ठीक है, इट एक्टिवेट्स दीज 2 सेल्स और इनको इंस्टिकेट करती है कि स्टार्ट रिलीजिंग अ केमिकल कॉल्ड हिस्टामीन. एंड दिस हिस्टामीन इज एलर्जिक इन रिस्पॉन्स. ये जहाँ जहाँ रिलीज होगा वहाँ पर आपको एलर्जिक सिम्टम्स दिखेंगे. नेक्स्ट इज IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G. ये सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हैं.
These are the generalized ones. 75% of the 100 of out of 100 antibodies, and they can even pass through the placenta and mother's milk. तो जो छोटा सा बेबी बाहर आता है उसमें ये वाली एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है. And it also occurs in blood, lymph and intestine. The next is IgM. This is the largest antibody. अब क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो इसका नंबर कम है, ये इनका नंबर कम है. फाइन. एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट वन टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन. Types of antibodies 5: IgG, IgE, IgD, IgA, IgM. You can see here the structures and you can also differentiate among them on the basis of the structure. I hope it's clear. Any queries, children? Please let me know. Revise the topic. Thank you for today.